के नाम में हम फर्स्ट थैंक्सगिविंग सर्विस पीसीजी में आपका स्वागत करते हैं। आज की सभा में करीबन 20-22 जन धन्यवाद की गवाही देंगे। 4 ग्रुप रहेगा, हर ग्रुप में 5-5 रहेंगे और 5 गवाहियों के सुनने के पश्चात हम लोग एक गीत भी गाएंगे। तो पास्टर विल्सन तैयार रहे। हर 5 गवाहियों के पश्चात एक धन्यवाद के गीत, टीम धन्यवाद ही रहेगा। कई गीत हमारे पास हम गा पाएंगे। मैं बहुत खुश हूं। सबसे पहले प्रथम बार सर्विस में गोल्डी स्मिता अपने बेबी को लेके आए। गोल्डी नहीं है यहाँ पर, लेकिन स्मिता, इस बच्चे का प्रथम अनुभव रहेगा। लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चों को क्यों लेके आए, समझ में तो आता नहीं। साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूव्ड, मेडिकली आल्सो। शुरू से ही बच्चों के कान में जब छोटे हैं, 1 दिन के हैं, प्रभु के वचन को बोला जाए धीरे धीरे, वह उनके दिल में अवश्य काम करेगा। क्योंकि वचन ये कहता है, माई वर्ड विल नेवर रिटर्न वॉइड, मेरा वचन कभी निरर्थक नहीं रहेगा। तो हम धन्यवाद देते हैं उस परिवार के लिए कि वे बेबी के साथ आज सभा में आए। फीवर था स्मिता को, लेकिन प्रभु ने उन्हें नया बल दिया। आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं जो इस सभा में आए। ये कलीसिया के लिए प्रथम बार हुआ है। प्रभु ने चाहा हर साल आखिरी द लास्ट थर्सडे ऑफ नवंबर पूरे वर्ल्ड में आज थैंक्सगिविंग सर्विस मनाई जा रही है। थैंक्सगिविंग डे मनाया जा रहा है। आज के दिन परिवार सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करते हुए अच्छा भोजन करते हैं। तो हमने ये चालू कर दिया है और इसको हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। आइए हम इस विशेष सभा को प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें। मिसेस थॉमस आ जाएं इस विशेष सभा को। जो ऑनलाइन में हमारे साथ हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। करीबन 1.5 घंटे की सभा रहेगी। आप हमारे साथ प्रार्थना के साथ बने रहें। Psalm 107. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Now let us pray. Thank you, Lord. Whoever has 2 hands, they can lift one of the right hand and pray with me. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you. God has given everybody 2 hands. At least we can lift 1 hand. Hallelujah, Lord. Blessed Heavenly Father, we are so thankful to you. Thankful to you, O God. Yes, Even Lord. if you have given, we can also celebrate the Thanksgiving Day, Lord. Father, we thank you, Hallelujah, Lord. thank you. How can I give thanks unto thee, Lord? Because you have done so much in my life, Lord, in our family, Lord, in all this congregation. Hallelujah, Lord. Presence here, Lord. Father, we thank you, Lord. A million tongues cannot express the gratitude. Even if you give all eternity, Lord, we could never finish giving you the thanks, Lord. Thank you, Father, Lord. We thank
Hallelujah, Help us to Lord. look at the cross, Lord. Father, we thank you, Lord. We want to look at your cross, look at the cross, what you have done for us, Lord. Help us to remember your suffering, Lord. Father, we thank you. You suffered, Lord, for us, Lord. Help us to be always grateful, Lord. Father, we thank you, we thank you, we thank you. Thank you, Lord. Lord, Thank you, Lord. we Thank you, Lord. especially pray for Holy Communion service also, Lord. Father, as Holy Communion service starts, Lord, special anointing will be rested upon Dr. Matthew Thomas and the team, Lord, and the worship team, Lord, and each and everyone participate. The Holy Communion, Lord, Father, give them the repentant heart, Lord. Father, we thank you, Lord. We all come, all will repent our sins, Lord. We have done so much knowingly or unknowingly, we don't know, but you are watching over us, Lord. You protect us, Lord, and you create in us a Hallelujah, clean heart, Lord. and deliver us from all the evil thing, Lord. Father, we thank you, Lord. You are alone our strength and shield, Lord. Yes, Father, Lord. we are Thank you, running to Lord. the tower of refuge. For help and mercy comes from you, Lord. Father, we give you glory and honor to you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. चेयर्स के अंदर जाओ और जल्दी कर दें. दोनों जगह हमें चेयर्स चाहिए. लोग अभी आना. आइए हम सब खड़े हो जाएं. एक गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं. धन्यवाद करता हूँ. पास में आ जाए, उनकी टीम आ जाए, पूरी टीम आ जाए. गाने की जो है वर्शिप टीम आ गए. ठीक. हालेलुया लॉर्ड. Song number 441. धन्यवाद करता हूँ यीशु, स्तुति मैं करता प्रभु. हालेलुया लॉर्ड. वेदन पर आपको बता रहे हैं. Song number 270. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. धन्यवाद करता हूँ यीशु, स्तुति मैं करता प्रभु जी. धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा. ताली बजाते हुए प्रेज़ द लॉर्ड हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे. हालेलुया. जोरदार तालियों की आवाज गूंजनी चाहिए हमारे प्रभु के लिए. हालेलुया. आमेन. जैसे कि कहा कि ऊंचे स्वर के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करें. हालेलुया. आमेन. धन्यवाद करता हूँ यीशु, स्तुति मैं करता प्रभु. धन्यवाद करता हूँ यीशु, स्तुति मैं करता प्रभु.
कई लोग गवाही देने जा रहे हैं। पास्टर विल्सन ने करीबन 20 जन का नाम मुझे दे दिया है। यदि आप विश्वास करते हैं आज कि इस सर्विस में प्रभु आपको छूने पाए, वो तीसरी कड़ी को फिर से दूसरी कड़ी को गाएं, यहोवा राफा। यहोवा राफा धन्य राजा, चंगाई देता धन्य राजा। यहोवा राफा धन्य राजा, चंगाई देता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ यीशु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ यीशु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, 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 धन्य यीशु राजा। अपने पवित्र हाथों को उठा के उसको धन्यवाद तो दे देंगे। हालेलुया। जबकि हम धन्यवाद की सभा में आ जाए, इसलिए कितने लोग जो हमसे अच्छे हैं चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवितों की भूमि में रखा है, तंदुरुस्ती प्रदान की, चलने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, बोलने की ताकत दी। ये सब के लिए प्रभु का धन्यवाद तो कर रहे हैं। धन्यवाद। ओरा वाला धन्यवाद, धन्यवाद। रेखा लवा शब्द लवा के ओरा वाला वाली खंडा लवा ओरा वाला ओरा वाला शक्ले लो कपा के कंदा हालेलुया। ओरा वाला शक्ले हालेलुया। धन्यवाद के केवल वो ही परमेश्वर है। धन्यवाद के योग्य केवल एक ही परमेश्वर है। हम उसको धन्यवाद देने आज आए हैं। हमारे नथनों में सांसें हैं, हमारा दिल धड़क रहा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसका अनुग्रह है। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्य हो तेरा नाम, धन्य हो तेरा नाम, धन्य हो तेरा नाम। पुराना गीते परम पिता के सिर्फ की वाली एक ही कड़ी गाने जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो तेरा नाम। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से होती चट्टान को जय ललकारी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। कृपया से बैठ जाएं। गवाही का समय धन्यवाद के लिए जो शब्द प्रभु के सामने आप लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं कर पाएंगे, लेकिन समय का ध्यान रखें। 2 मिनट से ज्यादा कोई ना ले। कितना भी नया प्रकाशन आपको मिल रहा हो, 2 मिनट में हम लोग माइक ऑफ कर देंगे। तो 2 मिनट से ज्यादा कोई ना ले।
2 मिनट में हम काफी बातों के बारे में परमेश्वर से चर्चा करते हुए, पहला ग्रुप में है मिस्टर शीला फेलिक्स, जीनियस जयंता, जहाशुआ रूबन, इवेंटलिन वेस्ली एंड साउल नाटेकर सामने आ जाए 5 जन, और एक एक करते हुए हम गवाही परमेश्वर की देने जा रहे हैं। सिस्टर शीला फेलिक्स, जीनियस, जॉशुआ रूबन, इवेंटलिन वेस्ली, साउल नाटेकर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज इस थैंक्स गिविंग मीटिंग में मुझे भी अवसर मिला कि मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकूं। जो उपकार उसने हमारे जीवन में किए हैं, हमारे परिवार में किए हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आज हम जीवतों की जमीन में पाए जाते हैं क्योंकि उसकी करुणा हमारे संग रही। उसने हमारे परिवार को आंसुओं से और ठोकर खाने से और मृत्यु से बचा के रखा। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बीते दिनों में वो हमारे लिए भला रहा, हर विपत्तियों से उसने हमें बचाया। विशेषकर इस कोविड-19 के समय में उसने हमारी सुरक्षा की, हर प्रकार से हमारी रक्षा की, किसी प्रकार की कोई तकलीफ होने का मौका नहीं दिया। विशेषकर रूबन के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इन दिनों में वह पूरा समय वो स्कूल आता जाता रहा, पेरेंट्स, टीचर्स सबके साथ उसका संपर्क रहा, लेकिन प्रभु ने उसको संभाल के रखा, हर विपत्ति से बचाया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उसी प्रकार रोनी परिवार को दिल्ली की स्थिति तो आपको मालूम थी, उस अवस्था में भी प्रभु ने उस पूरे परिवार को संभाल के रखा, सारी आशीषों से उसको मालामाल किया। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। खाली भौतिक रूप में नहीं लेकिन आत्मिक रूप में भी रोनी को प्रभु ने कलीसिया में आगे बढ़ने के लिए सहायता किया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जोमन के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, उसकी पढ़ाई लिखाई में प्रभु ने आशीष दी, आगे बढ़ने में सहायता मदद की। एक एक पल प्रभु हमारे संग रहा। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सबों की प्रार्थना हमारे संग रही, जिसके कारण आज भी हम प्रभु में पाए जाते हैं और जीतों की जमीन में पाए जाते हैं। सारी आशीषें प्रभु हमें दिया है, सोच और समझ से बढ़कर, जो हमने मांगा उससे बढ़कर, मांगने से ज्यादा प्रभु ने हमको दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। Praise the Lord. I want to thank Pastor Uncle and Auntie for this beautiful opportunity. I take this opportunity to thank my loving God for His faithfulness in my life as well as in our home. In the month of April, my parents were seriously ill. As a result, for many days we were detached to them. It was very difficult for us, but God healed them and restored them good health. I thank God for that. I thank God for enabling me and my brother to attend online classes during COVID-19 and get very good marks in our examinations. I thank God for gift of life, gift of salvation and godly parents. Because of all these things, we experience God's presence in our home through prayer and fellowship. Please pray for us and our entire family members to have God's grace and mercy so that we may grow in love, faithfulness and fellowship. Thank you. Praise the Lord. I thank God for this privilege He has given to me. I thank God for His mercy He has given to me. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. The Lord has protected me from all harm and dangers. He has protected me from all devil's schemes. And I thank God that He has helped me in my studies. Please pray for me and my family. For I am having exams from 13th of December. Please help me and pray for me. Thank you.
सबको जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर ने मेरे आत्मिक जीवन में क्या क्या कार्य किया, उसमें मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे बाइबल मेडिटेट करने के लिए सहायता मदद किया मत्ती के सुसमाचार से, और परमेश्वर ने मुझे चर्च में एक बार मौका दिया प्रचार करने के लिए, और परमेश्वर ने मुझे नए नए वचनों को सीखने के लिए सहायता मदद किया, और मुझे नए नए गानों को सीखने के लिए सहायता मदद किया। उसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अब मैं अपने शारीरिक स्थिति में परमेश्वर ने मेरी लाइफ में क्या क्या कार्य किया, उसमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने इस साल पूरा मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने नहीं दिया, उसमें मैं परमेश्वर को कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद देना चाहती हूँ। छोटी मोटी बीमारी आई और उसमें सब परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, उसमें परमेश्वर को कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अब तक मुझे परमेश्वर ने कोरोना वायरस से संभाल रखा, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया। अब तक मेरे जो भी एग्ज़ाम्स आए थे उसमें सब परमेश्वर ने मुझे लिखने के लिए सहायता मदद किया, और मुझे स्कूल में न्यू प्रिंसिपल दिया, उसमें मैं परमेश्वर को कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद देना चाहती हूँ। आखिर में यीशु मसीह के प्यार के कारण, यीशु मसीह के चाहत के कारण और यीशु मसीह की भलाई के कारण मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब आमीन। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित ही ये वर्ष हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही कठिन रहा। हमने 2 महीने के अंदर हमारे परिवार में 3 स्तंभ जिसे कह सकते हैं वो खोए हैं। सबसे पहले 3 तारीख को हमारे नाना, उसके 8 या 10 घंटे के अंदर हमारे पापा, और 2 महीने के अंदर हमारे फूफा। तो ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही कठिन रहा। लेकिन उसके बाद जो कोविड का सीज़न आया, और कोविड के सीज़न में वो हमने देखा है कि जो बहुत पैसे से समृद्ध थे वो चाहते तो इस भोपाल या इंदौर ले जाने में बाई फ्लाइट समृद्ध थे, लेकिन ईश्वर ने उनको वो भी मौका नहीं दिया और उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमको उस कोविड में इतने अच्छे से साफ हमको चंगा रखा, पूरे परिवार को स्वस्थ रखा। ये निश्चित ही प्रभु की हमारे ऊपर बड़ी करुणा है, और हम विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया को। हकीकत में ऐसी कलीसिया, पेंटिकॉस्टल कलीसिया की ऐसी कलीसिया से जुड़ने के लिए आदमी तरसते हैं। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे पासवान की निगरानी में पास्टर फेलिक्स, पास्टर विल्सन, पास्टर निखिल, हकीकत में हम इनका शुक्रगुजार। अगर 8-15 दिन के अंदर इन्होंने हमसे फ़ोन पे बात नहीं करी, नहीं तो दूसरे चर्चों में हमने नहीं देखा कभी ऐसा होता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए कि निश्चित आप हमारे परिवार के लिए ध्यान प्रार्थना करें, खासकर मिसेस के लिए। पहले उन लोगों को टाइफाइड हुआ, पहले मुझे पीलिया हुआ, फिर मेरे बाद उनको टाइफाइड हुआ, अब उनको फिर निमोनिया हो गया। तो प्लीज़ हमारे परिवार के लिए, दोनों बच्चों के लिए, मम्मी के लिए आप प्लीज़ दुआ करें। अब आ जाए भाई सुधीर फ्रांसिस, दियो सिंह, बबलू जोसेफ, सुनील निर्मल, आंटी एडना जेम्स। आ जाए, 1 2 आ जाए, वेट न करें। जो नहीं आए तो दूसरों को बाद में दे देंगे। जय मसीह की सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर समय मुझे अपने जीवन में दिया कि मैं आज अपनी गवाही आप लोगों के बीच में देने वाला हो सका, क्योंकि परमेश्वर ने ये अवसर हर समय हर पल हमें देता है, परंतु हम इसको स्मरण नहीं करते। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ
कि हमारी कलीसिया ने ये अवसर दिया कि हम में से हमारे जीवन में कौन से अद्भुत ऐसे आश्चर्यकार हुए जो हमारे परमेश्वर ने किया, लोगों के बीच में हम उसको एक दूसरे को शेयर करने वाला धन्यवाद देता हूँ पास्टर मैथ्यू थॉमस को, जिन्होंने हमारे जीवन के लिए एक उत्तरदायी मार्ग चुना। जबकि हमको ये कलीसिया मिली, जब से हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य हुए। मेरी मिसिस की हमेशा तबीयत खराब रहती थी, बीच में अटैक भी आया था और पास्टर साहब ने प्रार्थना करे, जबकि मैं इस कलीसिया से बिलोंग नहीं करता था, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि हमारे जीवन में हमारे पास्टर साहब ने प्रेयर करे ताकि हमारे घर की जो कठिनाइयाँ समस्या थी, बीमारी की, हर एक बातों में परमेश्वर ने हमारा सहयोग किया और पास्टर साहब ने हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहे। और मैंने पास्टर साहब को बोला था कि अगर मेरे जीवन में कोई ऐसी बात आती तो मैं कलीसिया को जरूर आऊँगा, और परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं कलीसिया में आया और कलीसिया के तमाम लोगों ने मुझे ग्रहण किया और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की और हमें अवसर भी दिया पास्टर प्रचारकों ने कि हम इस कलीसिया में रहकर अच्छे कार्य करें, और प्रभु ने हमें साथ दिया। हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए और उसकी उन्नति के लिए कि हम निरंतर उसके कार्यों में निरंतर बढ़ते जाएं। हम सबको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले इस बात के लिए कि प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि मैं आपके सामने खड़े होकर फिर बोल सकूँ। मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है किसी के सामने कुछ बोलने में, पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी। और खासतौर से मैं अपने परिवार के लिए आप लोग से विनती करता हूँ कि प्रार्थना करें कि प्रभु अपना विश्वास उनके हृदय में और उंडे ले, ताकि वो प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए और प्रभु की संगति में आगे बढ़ने वाले हो सके। हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे साथ भी हो, मेरे काम में और मेरी संगति में प्रभु सदैव मेरे साथ बना रहे, कि मैं किसी गलत संगति में ना जाने पाऊँ। अभी तक प्रभु ने मुझे संभाला। पिछले 20 वर्ष पहले की बात कहूँ तो 5 बार प्रभु ने मुझे मृत्यु की बेला से बचाया। कई बार ऐसी घटनाएं घटी मेरे जीवन में कि मैं मृत्यु में जा सकता था, पर प्रभु ने मुझे जीवितों के बीच में रखा, शायद इसलिए कि मैं उसके नाम की स्तुति महिमा आपके सामने कर सकूँ। प्रभु ने अभी तक मुझे संभाला। आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए सदैव प्रार्थना कीजिए। हम भी अपनी फैमिली पेयर में आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु से विनती है, प्रार्थना है कि हम प्रभु की बातों में आगे बढ़ने वाले हो सकें। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को कि इतनी बीमारियों से मेरे को बचा के रखा और अगले साल तक जब तक जीवित हूँ, जब तक ईश्वर मेरे को बचा के रखेगा, मुझे विश्वास है। जो यहोवा की बात जोड़ते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाते और उकाब की नाई उड़ते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और सबों की प्रार्थना सुनी। मेरी बड़ी समस्या थी, मेरे जीवन में बड़ी समस्या थी कि मेरी पेंशन में गड़बड़ी चल रही थी, पर मैंने पासवान को दुआ करी, उन्हें दुआ करी कि अधिकारियों के लिए, अधिकारियों के मन में ये डाले मेरे को, उन्हें दुआ करी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि झांसी के बड़े ऑफिसर ने जनों की प्रार्थना सुनी और मेरी भी प्रार्थना सुनी और उनने मेरा सबसे बड़ा समस्या को दूर किया। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को और सब बीमारियों से हमको बचा के रखा, हमारे परिवार को बचा के रखा। धन्यवाद देती हूँ। जनवरी से मेरा पूरा काम ठीक हो जाएगा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को। उसने मेरी प्रार्थना को सुना और झांसी के बड़े ऑफिसर ने ये काम लिया। जनवरी में मेरा काम पूरा हो जाएगा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर। आदरणीय
सबको धन्यवाद करता हूँ, मुझे मौका दिया गवाही देने का। मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कठिन समय में ईश्वर ने मुझे साथ दिया। लॉकडाउन में, पूरा लॉकडाउन में साथ दिया। लॉकडाउन एक्सपायर हो गए 12 मई को। 12 मई के बाद में बहुत भी मैं अपडाउन करता था, तो मुझे ड्यूटी से बैठा दिया गया। ईश्वर ने मेरी सहायता मदद करी। उसके बाद फिर ड्यूटी बुलाया गया। बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद चाहता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर साहब को चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी दुआ में याद रखा, मेरे परिवार को याद रखा। मेरे पास बोलने के लिए बहुत दवाई है, मगर समय पैसा मुझे कम दिया है। 2016 को 22 तारीख को इतनी मेरे यहाँ मीटिंग रखी गई थी। इतने आंधी तूफान आया था, जूते चप्पल बह गए थे। मेरा कच्चा मकान था। ईश्वर ने उसी दिन आदरणीय पैसा आए थे दुआ करने। उन्होंने 5 बार फोन लगाया, मीटिंग कैंसिल करना है, कैंसिल करना है, पर नहीं पैसा मीटिंग हो गया। उसी दिन से उठती बिनती दुआ चालू कर दी। तो ईश्वर ने वो मकान मुझे बनाया। उसी दिन से मीटिंग चालू की, उसी दिन से मकान बनने का दुआ चालू हुई। मकान अगले साल 2 साल बाद मकान का कार्य चालू किया। उसके बाद मेरे पास ओनली 70,000 रुपये थे। 70,000 में मैंने कार्य चालू कर दिया। लोग हंसी उड़ाने लगे मेरे, कैसा काम करेगा, कैसा करेगा 70,000 में। मैंने कहा मेरा ईश्वर सब करेगा। ईश्वर ने मेरी सहायता मदद करी। वो काम ईश्वर ने मुझे मकान बनाने में सहायता मदद करी। मकान भी बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को, मेरे परिवार को दुआ में याद रखा। भाई सुधीर आ गए हैं, देखा भाई सुधीर फ्रांसिस आ जाए। सबको जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज तक मुझे और मेरे परिवार को सही सलामत रखा। हर बीमारी, हर मुसीबत, हर कोरोना से सबसे बचा के रखा। और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने समय समय पे आपने मेरे परिवार के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, और उसके फलस्वरूप हम आज सही सलामत पाए जाते हैं। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने समय समय पे हमारी हर प्रार्थना सुनी, और आप लोगों ने हर बार वक्त हमारा साथ दिया। हर वक्त हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट में आपने हमारे लिए प्रार्थना की। अभी भी आप, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि राइट शोल्डर और ये हाथ के यहाँ दर्द होता है वो जल्द से जल्द ठीक होने पाए। और ख़ास करके मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि बेटी सपना के लिए कि उसका 8 मंथ चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज तक प्रार्थना करते आए, आगे भी उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो सेफ डिलीवरी समय पर हो। और ईश्वर को इसी बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। ताली बजाते हुए प्रेज़ द लॉर्ड मिलकर गाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है।
गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण आत्मा वे मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण आत्मा वे मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। तीसरा ग्रुप है पर्ली, केलब, जया, जेकब, एनोस, तिमोथी, सुशील, बलवान, इन्ना, जेम्स। एक और बार मिसेस पर्ली केलब और मिसेस जया जेकब, मिस्टर एनोस तिमोथी, मिस्टर सुशील बलवान, मिस्टर हिंदा जेम्स। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मैं आप लोगों के सामने जीवित खड़ा हूँ और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो कि उसने मुझे नया जीवन दिया। बीते समय में कोविड-19 में मुझे कोविड हो गया था और मेरे परिवार में भी बहुत से लोगों को हो गया था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा मैं कि परमेश्वर इतना महान, इतना दयालु है कि उसने हम सभी की रक्षा करी, हमें नया जीवन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी सांसें बंद हो गई थी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और मेरा गला भी चोक हो गया था। और जब मैं होशंगाबाद सिटी स्कैन के लिए गया तो जब मेरा सिटी स्कैन हुआ तो डॉक्टरों ने भी यही बता दिया था कि 80-90% आपके लंग्स खराब हो चुके हैं और बहुत लेट हो चुका है। बहुत घबरा दिया था और मैंने उम्मीद पूरी छोड़ दी थी, लेकिन पास्टर लोगों से मेरी प्रार्थना वो मेरे लिए कर रहे थे और मेरी बात चल रही थी। पास्टर विल्सन से भी मेरी बात चल रही थी, उन्होंने मुझे हियाब दिया, हिम्मत दिया और मैंने यहाँ तक ये बोल दिया था कि पास्टर जी आपको मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा फ्यूनरल का कर लो आप, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बहुत घबरा गए, उन्होंने बोला नहीं बेटा आप डरो मत, आप घबराओ मत, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने तुरंत मेरे लिए प्रार्थना करी, मुझे हियाब दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रात में 12:30 बजे जब मुझे एडमिट किया गया तो रात भर मैं तड़पता रहा, बेचैन रहा, ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, कल का सुबह मैं देख पाऊँ कि नहीं। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई करा कि तुम्हें प्रभु बोझ लेना है। ये हो सकता, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था, ये हो सकता मेरा लास्ट प्रभु बोझ है, इसके बाद क्या मालूम मैं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब मेरे अंदर ये अगुवाई, मैंने सवेरे 5 बजे मैंने सिस्टर से बोला कि मुझे ब्रेड चाहिए, मेरे पास जूस रखा हुआ था मैं लूंगा, तो सिस्टर ने बोला लॉकडाउन में ब्रेड नहीं मिलेगी। मैंने अपने घर वालों को फोन करा, उन्होंने तुरंत मेरे को ब्रेड के लिए प्रबंध करा और मैंने सच्चे दिल से प्रार्थना करके जब मैंने उसे लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे विश्वासी भाई बहनों कि मेरे जीवन में इतना अद्भुत काम परमेश्वर ने करा कि 3 दिन में मुझे चंगाई दी प्रभु ने। और परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है कि जो उसका मांस खाता और उसका लहू पीता उसमें जीवन है, और ये वचन मेरे जीवन में काम करा और आज मैं आप सभी के सामने जीवित पाया जाता हूँ। और मुझे बस 1 दिन मास्क लगाने की, ऑक्सीजन मास्क लगाने की जरूरत पड़ी थी और 2 दिन मैंने कुछ नहीं लगाया, मेरी इंप्रूवमेंट होते गया। और मेरी वाइफ से जब मेरी बात चल रही थी तो वो यही बोल रही थी तुम निश्चित कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुमको परमेश्वर ने नया जीवन दान दे दिया है और तुम्हें बच गए हो तुम। क्योंकि मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ, अपने पासवान लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं और
उसने मुझे एक ही चीज बोला था कि जो भी दवाई तुम्हें दी जा रही है वो प्रभु का यीशु का लहू बन चुका है और वो तुम्हारे अंदर जा रहा है और तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और मैंने इस बात पे भी विश्वास करा। और जब मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 दिन में परमेश्वर ने मुझे वहां से छुट्टी दिलवाई, जबकि वहां पर इतने लोग थे जो हफ्ते भर से पड़े थे, महीने भर से पड़े थे, कोई चंगाई नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। मेरे सामने मर रहे थे लोग और उनको ऐसे जैसे गठरी बांध के फेंक रहे थे, ऐसी बुरी स्थिति थी। मैं उससे भी घबरा गया था, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह से मुझे निकाला, नया जीवन मुझे दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ, प्रभु की तारीफ करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के पासवान लोगों के लिए जो निरंतर हमारे परिवार और हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को जवाब दिया कि आज मैं यहाँ जीवित पाया जाता हूँ, मेरे परिवार के लोग जीवित पाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें हिंदू की भूमि पर रखा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे बड़े भाई साहब को पैरालाइज अटैक जवान पे आया था और डॉक्टर जसवानी को जब हमने दिखाया तो डॉक्टर जसवानी बोले कि माइंड में 2 क्लॉट है। फिर दूसरे दिन मेरा भाई साहब मुझसे बोलता कि अब मैं बोल नहीं पाऊँगा, लोग मैं तोतला बोलूँगा तो लोग मेरे हंसेंगे मेरे ऊपर। फिर मैंने निखिल सर को 2 दिन बाद फ़ोन करा, फिर मैंने निखिल सर को बोला कि मैंने कहा सर मेरे भाई के लिए प्रेयर कीजिए। तो सर ने बोला मैं ग्रुप में अब भी डालता हूँ। फिर उसके दूसरे दिन पास्टर विल्सन और अपना तेली संख्या ये घर आए, कई बार फ़ोन पे उन्होंने दुआ करी। और बड़ा भाई साहब को मैंने बोला कि आपको है ना जो दुआ में है यानी नामुमकिन को मुमकिन कर देगी, यानी आपको बिल्कुल 3 महीने के अंदर वो बिल्कुल पूर्ण रूप से पास्टर विल्सन से परसों के दिन उन्होंने कम से कम 1 घंटा बात करी बैठ के। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमारे और हमारे परिवार मम्मी के लिए तो आप लोग प्रेयर करते ही, और आप सबको तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मेरी पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने अभी तक हमको साल भर संभाल कर रखा, नौकरी में आने जाने में संभाल कर रखा। कई दिक्कतें आई ऐसी कि नौकरी में भी वो हुआ, परेशान हुए, बाकी उसने तो हमें काफ़ी संभाल कर रखा। और मेरी बहन को भी कोविड हो गया था, बड़ी बहन को कोविड हो गया था। मैंने फिर निखिल सर को फ़ोन करा, निखिल सर ने प्रार्थना में डाला था उनका, और फेलिक्स अंकल और बेसन अंकल को भी बताया था, तो उन्हें प्रेयर में डाला था और सबके लिए प्रेयर करी। और आप लोग हमारे लिए प्रेयर करते हैं, मैं भी आप लोग के लिए प्रेयर करता हूँ। और हमको साल भर संभाल कर रखा और अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, हमको परमेश्वर ने संभाल के रखा, उसका धन्यवाद देता हूँ। साल की तपस्या के बाद ईश्वर ने मुझे बहुत बड़ा प्रतिफल दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। हम पति पत्नी आंसू के साथ में प्रेयर करते थे, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुने। रोते रोते मेरे पति संसार से चले गए, लेकिन प्रार्थना को कोई उत्तर नहीं मिला। जब भी मैं पास्टर साहब से बात करती थी तो कहते थे जय प्रार्थना ईश्वर सुनेगा। और एक दिन ऐसा हुआ मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मैडम का, पास्टर का, कि वो लोग मेरे लिए हमेशा मेरे परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। और जब भी मैं उनसे फोन से बात करती हूँ तो मुझे बहुत हिम्मत और ढाढ़स देते हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जब मैंने अक्टूबर 1 तारीख को मीटिंग का सोचा था कि पासवान मैं अपने घर में मीटिंग कराऊंगी, तो उन्होंने कहा ठीक है लेकिन कम लोग आएंगे। फिर मैंने उनसे बोली नहीं आपको आना है और मेरे को मीटिंग करना है। फिर उन्होंने मुझसे फ़ोन से पूछा कि जय प्रार्थना का रीजन क्या है बताओ। मैंने कहा सर कुछ नहीं है, बस मैं मेरे बेटे के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा ईश्वर के नजदीक आएगा। और पासवान ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे शब्द को सुना और मीटिंग किया। उस दिन मेरा बेटा जब भी मेरे वहाँ प्रेयर होती थी तो वो घर से निकल के चला जाता, भाग जाता था, मीटिंग में नहीं बैठता था। लेकिन जब उस दिन प्रेयर मीटिंग हुई बैठा रहा और मैडम ने और पास्टर ने उसके लिए बहुत प्रेयर किए आंसू के साथ, और वो भी रोआ। जब भी हम प्रार्थना करते थे वो हमारे साथ बैठता नहीं था, लेकिन आज ऐसा है कि बाइबल पढ़ता,
प्रार्थना दुआ करता, दोनों पति पत्नी ईश्वर के नजदीक आए और मुझसे कहता, मम्मी चिंता नहीं करना, मैं हर संडे जग जाऊंगा। पास्टर साहब को भी और मैडम को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जो इतनी सुंदर कलीसिया, इतने पासमान अच्छे, कि जो समय समय पे हमारी सुधि लेते और हमारी सहायता करते और अच्छे प्यार के शब्द हमें सुनाते, उससे हमें बहुत हिम्मत और ढाढ़स मिलता है। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर मेरी एक और मुक्ति बनती है कि मैं वो भी चाहती हूँ कि पूरी हो जाए और ईश्वर करके रहेगा। मेरे आंखों को ईश्वर ने देखा, कुप्पी में जमा किया और मुझे दिखाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे आंखों में काफ़ी तकलीफ है, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन ईश्वर वो भी मुझे करके दिखाएगा, मुझे विश्वास है। ये मैंने देखा है, ये मैंने चखा है। जब से मेरे पति चले गए संसार से, जब भी मैं पति के साथ जाती थी मुझे लगता था कि मैं कैसी रहूँगी। मैं उनके जाने के बाद और टूट गई, लेकिन मुझे बहुत संभाला। इतनी सारी परेशानी आई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन मैं स्थिर रही और प्रार्थना निरंतर करती रही। उसके बाद में मेरी छोटी बेटी की भी तबीयत खराब हो गई, उसको टाइफाइड बताया और फिर उसका यहाँ चेकअप हुआ, पेट में दर्द हो रहा था। मैंने फिर उस निखिल सर को फोन लगाया कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्हें तुरंत प्रेयर किया और मेरी बेटी तो मतलब यहाँ पे जसवानी के यहाँ दिखाया तो मेरे पेट में गठान है। फिर वो दूसरे दिन भोपाल गए, वहाँ टेस्ट हुआ, पास्टर निखिल ने प्रार्थना किया और वहाँ देखे चेकअप हुआ तो गठान भी गायब हो गई, दर्द भी गायब हो गया और सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे बच्चों के लिए, मेरे नातू के लिए, सबके लिए आप बहुत बहुत प्रेयर करनी है अभी भी कि वो ईश्वर के नजदीक और निरंतर आए। इसके लिए मैं धन्यवाद देती। एक बार फिर आप सबों का, पासमान का, मैडम का हृदय से हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करती। धन्यवाद। बीते महीने हमारे घर में बहुत मुसीबत आई। हम लोग सब जन कोरोना से पीड़ित थे, मैं, मेरे पति, मेरा बेटा। ईश्वर ने हमारी बहू को और बच्चे को संभाल के रखा। उसका रिपोर्ट नेगेटिव आई। कुछ समय के बाद आप लोग ने सबने हमारे लिए प्रार्थना करी, पर ईश्वर ने 24-25 दिन के बाद मेरे बेटे को इस दुनिया से चला गया। वो उस परिस्थिति में भी ईश्वर ने हमको हिम्मत दी, सहने की शक्ति दी। हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप लोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना। आखिर ग्रुप हमारा है ज्योति सिंह, सुनील पीटर, सैमुअल सिंह, जोसेफ थॉमस, अंजू सिंह। मैं परमेश्वर पिता का सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने स्वस्थता से खड़ा हुआ हूँ। इस साल के शुरू से लेकर के अभी तक 25 तारीख तक 11वें महीने की प्रभु ने हमारे परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ और मेरे साथ रहा। इसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हालांकि बहुत उतार चढ़ाव है। अभी आपने मेरी बड़ी सिस्टर से भी सुना है। हमारा घर और हमारे तीनों घर सिंह फैमिली के, जिसमें मेरा बेटा था गोल्डी, और वो भी कोविड पॉजिटिव था। अप्रैल में इंदौर से आए थे। हमारी बहू जो प्रेग्नेंट थी उस वक्त वो भी पॉजिटिव थी। मतलब एक प्रकार से एक ऐसा माहौल बन गया था अप्रैल में हमारे घर का कि नीचे हमारी डॉटर इन लॉ थी बहू और ऊपर कमरे में गोल्डी था, और हम दोनों ऊपर नीचे उनको क्रॉस करते हुए जाते थे खाना देना,
जो भी कुछ काम है कर। प्रभु ने उस विषम परिस्थिति में भी हमको संभाल के रखा, हम दोनों को, पति पत्नी को। हमको कुछ नहीं हुआ, हम लोग नेगेटिव रहे और उनकी सेवा करते रहे। उनके बीच में गोल्डी को एडमिट भी करना पड़ा। पासवान और हमारे और सहयोगी पासवान लोग डेली फोन से कांटेक्ट करते थे, उसको प्रोत्साहन देते थे, प्रार्थना करते थे और उसको हंसाते भी रहते थे। हमारे बड़े भाई साहब हंसाते रहते हैं फोन पे उसको, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाता है। माहौल ऐसा था कि सामने हनी एडमिट था, यहाँ पे सामने हमारे सिंह फैमिली में गोल्डी एडमिट था। मतलब हमारा सिंह फैमिली और कैले फैमिली इतनी पूरी तरह से चिंतित था, डिस्टर्ब था, परेशान था। लेकिन आप सबों की प्रार्थना और पासवान की प्रार्थना और प्रभु जो उस विषम परिस्थिति में हम लोग के साथ रहा, उसकी उपस्थिति हमने देखा है। और अभी गोल्डी अच्छा पाया जाता है, स्मिता भी अच्छी है और हम लोग दोनों भी स्वस्थ पाए जाते हैं। हमारा पूरा परिवार अभी स्वस्थ है। हर तरह से प्रभु ने हमको आशीष दिया है, सारी आशीषें दिया। उसके बाद हमने जो सोचा नहीं था, जो मांगा नहीं था, जो मांगा था उससे बढ़कर, और जो हमारी आंखों में लिखा है बाइबल में, जो देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, उससे बढ़कर चीज़ें हमको, उस आशीषें हमको दिया। नॉट भौतिक आशीषें, भौतिक आशीष के साथ साथ हमें आत्मिक आशीषें भी बहुत मिली है। तो मैं आप लोग सब को धन्यवाद देता हूँ हृदय से, प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अभी तक हमको संभाला है, आगे भी आप लोग हमारे परिवार के लिए, पूरे सिंह फैमिली के लिए, कैले फैमिली के लिए और गोल्डी के लिए हमेशा आपको प्रार्थना करते हैं। इसलिए धन्यवाद, आगे भी करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु को मिले। थैंक यू। आप सबों को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं भी कुछ धन्यवाद के साथ बोल सकूं। वैसे तो मेरे जीवन में धन्यवाद ही धन्यवाद है, क्योंकि बिना धन्यवाद के मेरा जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। मैं सोच रहा था कि क्या कहाँ से चालू करूं, तो मेरे को बैठे मुझे याद आया, साल के शुरू में ही मेरी तबीयत खराब हुई थी और मैं भोपाल गया था। वहाँ पर मेरे टेस्ट हुए, तो जो डॉक्टर ने टेस्ट किया था वो बोले आपको 3 दिन के बाद आपका ऑपरेशन करना पड़ता। मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मैं घर आ गया, भाई साहब को बताया, सभी लोगों को मैंने, चर्च में भी प्रेयर हुई मेरे लिए। उसके बाद से अभी तक मेरा ऑपरेशन तो हुआ नहीं है। ये दिसंबर आ गया, तो आप लोग उस बात के लिए भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। और दूसरी बात, कोविड-19 के बारे में सब बता रहे थे, तो मैं सोचा कि मैं भी कुछ बताऊं उस बारे में। क्योंकि जब कोविड-19 आया था तो पहला मरीज जब इटारसी में आया था, उसी दिन रात में उसको अटेंड करने को मेरी मिसेस को जाना पड़ा। तो हम दोनों तो बहुत घबरा गए थे। तो मैंने कहा कि नहीं, चलो अपन पारी साहब के पास चलते हैं। और हम घर गए, भाई साहब ने प्रेयर करी हम दोनों के लिए और हम लोग हॉस्पिटल गए। जब से हम लोग कोविड पेशेंट के साथ, मिसेस तो बहुत ही ज़्यादा रही और मैं भी साथ में रहा और मेरा बेटा हनी, क्योंकि हमारे घर में भी हमारे भैया पीटर को हो गया था कोविड। हमारी दीदी यहीं रहती हैं हर साल में, विजय जीजा जी, इन लोगों को भी हो गया था। तो इनका सिटी स्कैन के लिए होशंगाबाद ले जाना पड़ता था। तो वहाँ पर इतने नंबर लगते थे कि रात में 2-2 बजे तक नंबर आता था। तो हनी उनके साथ जाता था, मतलब उसको भी सुरक्षित रखा, मतलब मेरे पूरे परिवार को कोविड-19 से सुरक्षित रखा, पूरे पीटर परिवार को जिंदों की ज़मीन में रखा। इसलिए धन्यवाद। दूसरी बात, अभिषेक के लिए प्रार्थना आप सबों ने की थी। अभी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वो ठीक हो गया और उसको एक दान के रूप में बेटी भी मिली,
इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ। वो लोग 12 तारीख को इटारसी आना चाहते हैं, आप लोग उसके लिए प्रार्थना करें। हर एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। मेरा गाना गाने के बाद थोड़ा गला बैठ गया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था दवाई दे सकता कि नहीं, मैंने प्रभु की दया से मेरा आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के लिए, उन्होंने मेरे जीवन में जो कुछ कार्य किया है, अगर मैं उसको वर्णन करूँ तो मैं आज की सभा में मैं कह नहीं पाएंगे, उतनी बहुत बड़ी बात है। लेकिन 2 मिनट के अंदर जो भी संतत में मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। पिछले नवंबर महीने से इस महीने नवंबर तक 1 साल, एक हमारे बीच में पिछले नवंबर में 22 तारीख को मेरे मिसेस को निमोनिया हो गया था। उस समय मैं कुछ दिल से घबराया था, लेकिन मैं उनके सामने प्रकट नहीं किया और ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया। उसको नर्मदा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। प्रभु की करुणा और दया, विशेष आदमी हमारा पासवान उनके माता पिता से उन्होंने बात किया, उन्होंने मुझे फोन के द्वारा प्रार्थना की। तब से प्रभु ने कार्य करने शुरू कर दिया। 3 हफ्ता वो उधर हॉस्पिटल में एडमिट था और नॉर्मल लेवल आने में काफ़ी टाइम लगा। परमेश्वर की दया और आप लोगों की विशेष प्रार्थना, सभी पाशों का, अपने बेबल स्टाफ, जितने कलीसिया के मेंबर्स, फैमिलीज हमसे संपर्क है, वो हमसे प्रेम करते हैं, उनकी प्रार्थना द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य किए, नया जीवन दिया। धन्यवाद देते हैं। प्रभु के भजन इस प्रकार, ऐसे 40 उसका 10वें इस प्रकार का है। मतदार क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। इस भजन मेरे जीवन में और दृढ़ताई किया, विश्वास में आगे बढ़ने की सहायता किया। मेरे बालपन से लेकर अभी तक, मेरा भी 68 साल पूरा हो गया है। आगे के समय में परमेश्वर जब धरती पर रखेंगे, प्रभु की बातों में और संगति में आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा और धन्यवाद करते हुए जीवन बिताना चाहता हूँ। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरे दोनों बच्चे और उनके परिवार के लिए विशेष दुआ करना है। आप लोग भी दुआ चाहते हुए मैं मेरे धन्यवाद सभा से बैठना चाहूँगा। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरे जीवन में मौका दिया कि मैं आप लोग के सामने एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। जो भी फिलहाल की है, मेरी बेटी का नर्सिंग में एडमिशन हो गया था। वो चली भी गई थी, फिर छुट्टियों में वापस आई। फिर जब वो जाना यहाँ से फिर चली गई, यहाँ से चली गई, उसके बाद में थोड़ा टाइम हो गया था तो उनकी प्रिंसिपल ने उनको बोला कि करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं, मेरी बेटी ने बोला कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। और उसके बाद में उसने पूरे कागजात में साइन कर लिए, उसको पूरे कागज मिल गए, पूरे हॉस्टल से अपना पूरा सामान ले ली और वो मेरे साथ आ गई। बोले मम्मी मैं नहीं करूँगी। उस रात फिर हम लोग देवास में थे। देवास में मैंने रात भर ईश्वर से, जब भी मेरी नींद खुलती थी, मैं यही दुआ करती कि प्रभु शैतान को दूर कर और तू इसके दिल में कार्य कर। और ऐसा ही हुआ। सुबह जब मैं उठी और उससे मैंने पूछी कि क्यों तुम जाना चाहती हो कॉलेज, तो उसने कहा कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ। और फिर मैं तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद दी कि परमेश्वर ने उसके दिल में कार्य किया और मैं उसे कॉलेज छोड़ने गई। उनकी प्रिंसिपल से मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को छोड़कर जा रही हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप छोड़कर जाइए। और फिर अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही उसका फाइनल प्रैक्टिकल हुआ था, उसमें उसके ग्रुप को प्रथम स्थान मिला था। और अभी 1 हफ्ते पहले ही डायबिटीज वर्ल्ड वो डे था, उसमें भी इसको अपने क्लास में पहला स्थान मिला। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। वो हर समय हर वक्त जहाँ हम उसको पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। इसलिए मैं एक पद पढ़ना चाहती हूँ। वो पाया जाता है भजन संहिता 138 उसका 3। जिस दिन मैंने यह पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली
और मुझ में बल देकर हियाव बनाया। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि मैं गवाही देने पाई, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझको और मेरे परिवार के लोगों को सुरक्षित रखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ अपने पति के लिए जिनका परमेश्वर सहायता करता है ड्यूटी आने जाने में। पिछले दिनों कार्य में भी उनको बरेली जाना पड़ा। आप लोग सब ने उनके लिए प्रार्थना करी और प्रभु ने उनके कार्य में सहायता की और हर संक्रमण से बचाया और सुरक्षित लेके आया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अपने लिए धन्यवाद करती हूँ। अभी जब मैं मीटिंग आ रही थी मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा था और मैं गाने में उठी ही नहीं। जब पासवान ने कहा कि आप लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करें और मैंने तुरंत अपने पेट में हाथ रख के प्रार्थना करी। दीदी ने मेरे से पूछा भी कि तुम खड़ी क्यों नहीं हो रही। मैं बोली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैं अभी मेरे बिल्कुल कोई भी दर्द नहीं है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ अपने बेटे के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हनी और गोल्डी दोनों को कोविड हुआ था और उन लोग भोपाल में एडमिट थे और उस समय मेरा बेटा उनकी सेवा में था। हॉस्पिटल आना जाना करता था। खाने का भी अच्छे से अरेंजमेंट नहीं होने पा रहा था वहाँ पे, लेकिन प्रभु ने उसकी भी सहायता करी और उसको बचाया। किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन उसको नहीं होने पाया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आप लोग उसके लिए प्रार्थना कीजिए। कल और परसों उसका पेपर है, भोपाल में है, ताकि वो अच्छे से पास होने पाए। अपने बेटे के लिए भी धन्यवाद देती हूँ जिसका नर्सिंग में प्रभु ने सिलेक्शन कराया। जैसा आपने सुना, ज्योति ने बताया, उन लोग ने, मेरी बेटी और रानी दोनों ने हमको 2-3 महीने काफ़ी परेशान किया। बोला मम्मी हमको ले चलो, मम्मी हमको ले चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमने उनसे बहुत पूछा कि क्या खाने की तकलीफ है। नहीं, ना खाने की तकलीफ है, ना कुछ तकलीफ है, बस हमको आप लोग की याद आती है। बस हम लोग ने बोला कि पढ़ाई में नहीं, बोले नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है मम्मी, लेकिन हमको ले चलो। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हर एक सहायक पासवान का, वरिष्ठ पासवान का, जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना करी और हर दिन हर बार हमसे पूछते हैं। और अभी जब हमारी बेटी लोग आई थी तो उन लोग ने ये बोला मम्मी आप चिंता मत करो, अब हमको अच्छा लगता है, अब हम वहीं पे अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे। तो आगे भी आप लोग उन लोग के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने पाए। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद तो कर लें इन गवाहों के लिए। गवाही आइए थोड़ी देर खड़े हो जाए। उसकी महानता को स्मरण करें थैंक्स गिविंग डे में। जब सर्विस चल रही है, करीबन 25-30 मिनट और है हमारे पास, प्रभु की आराधना भी करना है। ऐसा लगता था मुझे कि आज सबको गवाही देने का चांस दिया जाए, 12 बजे रात तक चले जाए। होगा? अब तैयार है अपने आप को, लिस्ट मेरे पास रखी हुई है। प्रभु ने चाहा 31 दिसंबर को हमारी वॉच नाइट सर्विस लंबी करेंगे। हम लोग 9 बजे नहीं, हम लोग 8 बजे प्रारंभ करेंगे। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जाएंगे। उसके बाद प्रभु की आराधना होगी। तो आप फिक्र ना करें, देखते हैं भी समय प्रभु की आराधना के पश्चात थोड़ा समय रहेगा। अवश्य 3-4 जन को और देना मुझे। आइए उठाएं, प्रभु महान विचारों पा लेते हैं। कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारीफ सुनो गर्जन भयंकर, साम
कितना प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। बैठ जाएं, धन्यवाद के साथ उस एटीट्यूड में ही रहें। भाई हमारे बोर्ड मेंबर आ जाएं, जो हमारे कैबिनेट मेंबर आ जाएं, साथ ही साथ हमारे एल्डर, उनको ज़्यादा देर में खड़ा नहीं रखूंगा, लेकिन भाई अनिल पीटर भी आ जाएं। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया कि हम प्रभु की मेज के सामने आप लोग बैठ सके, हम लोग खड़े रहे। इसकी महत्ता के बारे में कई बार मैंने चर्च में शिक्षा दे चुका हूं, तो आज की इस रात्रिकाल में संदेश देना नहीं चाहता। मन हो रहा था जब एनोश ने गवाही दी कि उसी अध्याय में निकल जाओ, यूहन्ना की इंजील में, जहां पर प्रभु के बारे में कई बातें लिखी हैं, लेकिन समय में बचाना है, अपने आप को तैयार करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हमारे एल्डर भाई अनिल पीटर के साथ इस प्रभु की आराधना को प्रारंभ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्य हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई तारीफ करते हैं प्रभु जी। संध्या के समय में प्रभु जी, खासकर इस धन्यवादी सभा में प्रभु उपस्थित होने का आपने सौभाग्य कराया। जितने लोगों ने गवाही दी प्रभु जी, हमने सुना, आपने उसको ग्रहण किया, आशीष दीजिए प्रभु जी। खासकर इस मैच के लिए दुआ मांगते हैं जो हमारे सम्मुख रखी है, इसमें जितने लोग सहभागी होंगे प्रभु जी, आज के प्रभु जी अच्छे से प्रभु जी अपने आप को समर्पित करते हुए इसमें सम्मिलित होने पाए प्रभु जी। जो किसी कारणवश नहीं सम्मिलित हो पाए, वो अपने आप को जांचे और परखे प्रभु जी। खासकर प्रभु जब इसको सब किया जाएगा प्रभु जी, बड़े गंभीरता से प्रभु इसको ग्रहण करने वाले पासवान की दुआ मांगते जो इसका संचालन करें, उन्हें भी सामर्थ्य प्रभु जी मांगते यीशु के नाम से, आमीन। सूचना इस प्रकार है कि आप लोग सामने आएंगे, दोनों तरफ बाएं दाएं हाथ में हमारे 4 प्रभु के दासगण खड़े रहेंगे। आप रोटी लीजिए, तत्पश्चात कप उठाएं, पिए, कप वापस ट्रे में रखें। आइए हम इस रोटी के लिए धन्यवाद दे दें। पास्टर फेलिक्स प्रार्थना करें। हालेलुया। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज ये अवसर आपने प्रदान किया है हमें प्रभु जी। आपने हमारे लिए जो और प्रभु जी जिस उद्देश्य के साथ आप मारा गया, जीवना उसको प्रभु जी स्मरण करने के लिए कृपा किया। वेदना साइन लिया प्रभु जी, हमारे वेदनाओं के लिए रोटी पर आशीष दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना के साथ, अनुग्रह के साथ, धन्यवाद के साथ प्राप्त करते हुए आशीष देने के लिए कृपा कर। आपने आशीष दिया, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद के पश्चात उसने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। जब कभी तुम इसमें से खाते हो, मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। प्रार्थना करें पास में सब। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं हालेलुया लॉर्ड, तेरे उस बेशकीमती लहू के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा प्रभु हमें हालेलुया लॉर्ड उद्धार मिला, जीवन मिला, छुटकारा मिला और हर प्रकार की आशीष
इस लहू के द्वारा हमें प्राप्त हुई, इसलिए प्रभु हम तुझको धन्यवाद देते हैं। इस प्याले के लिए धन्यवाद, जब प्रभु हम इसमें शामिल होने जा रहे हैं, प्रभु जी होने दे कि हमारे इसमें शामिल होना हम सब के लिए एक आशीष का कारण ठहर पाए। इस प्याले को तू आशीष करके दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पियारी के पश्चात उसने कटोरे को लिया और कहा, यह तुम्हारे लिए एक नई वाचा है, जब कभी तुम इसमें से पीते हो मेरे मृत्यु का प्रचार करते हो। गीत भाई, तेरे लहू से मुझे धोने तू प्रभु, तू हृदय से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे
सब लोग खड़े हो जाएं। आज की सभा से एक गवाही की ना हो जाए छंगाई की। हमने सुना परमेश्वर ने अंजू सिंह के जीवन में क्या किया। आज मैं ज्यादा बाहर निकला नहीं, 2 दिन से अधिकांश घर में ही रहा। मैं बीच में जाके पास्टर शेरिन को भी देख के आ गया हूं। काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। यदि आप उनको अब देखेंगे, कोई नहीं बोलेगा कि वो इतनी तबीयत खराब थी। फिर कल रात को सनी पॉल का फोन आया, रात में करीबन 9:30 बजे, कि भोपाल गए, डर रहे थे कि डायलिसिस में जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डायलिसिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु का धन्यवाद हो। स्मरण करें साथ ही साथ कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं सब सफलता प्राप्त करें। बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों का भी एग्जाम, छात्राओं का एग्जाम 29 से प्रारंभ होने जा रहा है। उनको भी प्रभु सहायता करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रभु सहायता करेगा। मेहनत करें, प्रभु सहायता करेगा। हम बड़े खुश हैं आज हम दोनों कि प्रभु ने हम दोनों को अच्छी शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह, अच्छा स्वास्थ्य दिया। न केवल हम जो स्वतंत्रता हमें प्रभु के द्वारा पाई, स्वतंत्रता के साथ ही उसका संरक्षण हमारे साथ बना रहा। हम बहुत धन्यवादित हैं। हम धन्यवादित हैं हमारे बच्चों के लिए, ग्रैंड किड्स के लिए। प्रभु ने सबों को संभाल के रखा। बातचीत चल रही है, सुबह भी बातचीत हुई। अभी वहाँ करीबन 8:15 हो रहा है माइकल के यहाँ, मलिसा के यहाँ करीब 9:30 हो रहा है प्रातःकाल का। सब लोग लगे हुए हैं, फोन से बातचीत हो रही है। हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। एक एक बात के लिए लंबी लिस्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे थे आज, लेकिन बना नहीं पाए। मैं मिसेस टॉमस से बोल रहा था, हम तो छोटी छोटी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी कलीसिया हमारे पास, अच्छे विश्वासी भाई बहन प्रभु ने हमको दिए हैं। सुना नहीं, आप सब लोग, मैं बोला अच्छे विश्वासी भाई बहन हमें दिए प्रभु ने। कॉलेज प्रभु के अनुग्रह से अच्छे से चल रहा है। अच्छे शिक्षक गण प्रभु ने हमें दिए हैं, शिक्षिका भी दी है। कभी कभी लोग प्रिया को भूल जाते हैं, लेकिन प्रिया भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक और मैडम आ रही है, फिर तो नाम याद ही रहेगा। हम प्रभु को धन्यवाद दें सब बातों के लिए, सब बातों के लिए। मैं सब बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि 11वें माह में आपके साथ फिर हमें यह अवसर प्रभु ने दिया कि हम प्रभु की आराधना आपके साथ कर पाए। मेरी तबीयत खराब हुई थी, आप सबको मालूम है, 3 हफ्ते पहले, और इतना हो रहा था कि भाई मिसेस टॉमस बोल रही यदि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा हम सीधे निकल जाएंगे। लेकिन प्रभु ने हमारी सहायता की, तंदुरुस्ती प्रदान की, बहुत ज्यादा। आई एम रेडी। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी मुझे 3-4 जगह बोलना है, जमशेदपुर, टाटा नगर, फिर गुजरात की कन्वेंशन में बोलना है, जूम में बोल रहे हैं हम लोग, आंध्र में बोलना है, कई जगह हम लोग को बोलना है। अभी भी लोग मांग रहे हैं, अभी टाइम नहीं भी हमें। एक जगह चाहते हैं 7 दिसंबर को एक जगह बोलना है, लेकिन 7 दिसंबर हमारे कैलेंडर में बहुत पहले ही 2 साल पहले मैं बुक कर दिया था, तो मैं दे नहीं पाऊंगा। प्रार्थना करें कि इतवार की सभा हमारी बड़ी आशीषित सभा होने पाए। पोस्ट थैंक्सगिविंग संडे मैसेज विल बी देयर। पोस्ट कन्वेंशन का मैसेज आपको मिल चुका है। अब मैं पोस्ट थैंक्सगिविंग मैसेज आप तक पहुंचाऊंगा। प्रभु आप सब, मैं बहुत, मैं वाइफ को बता रहा था, ऐसा लग रहा है इतवार की सभा है, काफी लोग आए। मैंने कहा काफी लोग आए, बाइबल कॉलेज वहां बैठाते तो लोग दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। बहुत खुश। इस प्रकार जब कभी सूचना
पास्टर विल्सन, पास्टर निखल, पास्टर जैन, पास्टर फिलिक्स देते हैं। आप आए, परिवार को लेके आए, बच्चों को साथ लेके आए, अच्छा रहेगा। आमेन। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर दें। महान परमेश्वर, पीसीजी टारसी के इतिहास में पहली बार तूने हमें थैंक्सगिविंग सर्विस करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। गवाहियों में हमने कई प्रेयर रिक्वेस्ट सुनी। तू प्रभु हर समय हमारी प्रार्थना के ऊपर अपने कान को लगाकर रखता है, इसे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे निकट आए हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबों को तूने अच्छा स्वास्थ्य दिया, आज जीवितों की भूमि में रखा। दुख, तकलीफ, मुसीबतें, दर्द आए, फिर भी आंसू आए, दिल टूटा, लेकिन तूने हमें नहीं छोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरी उत्तमता के लिए, तेरी महानता के लिए, तेरे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्य हो तेरा नाम, धन्य हो तेरा नाम। जब प्रभु हमारे कलीसिया के विश्वासी भाई बहन अपने घरों में जाते हैं, उनकी तू सुरक्षा कर ले प्रभु। हर प्रकार के खतरे, मुसीबत से तू बचा कर प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है, every home will be free from viruses, pestilences, diseases and the attacks of the enemy. Oh God, we commit the whole church to you, God. Thank you, Lord. Thank you for the team you have given to us. Thank you for the board. We thank you, Lord. Thank you for the people who are watching us through Zoom, through YouTube. Bless them also, Lord. Meet their needs, Lord. We thank you, Lord. Thank you. आधा मिनट और रह गया, तू भला है, 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 तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू भला है, 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 तू भला है। पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जब तक तू ना आए होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जो पास्टर विल्सन मुझे स्केड्यूल दिए थे, उसमें लिखा 6:30 से लेकर 8 बजे तक, 8 बज गए हैं। प्रभु आपको बरकत दे।